السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10ویں جماعت کے مساحت سبق کے چوتھے حصے میں پارٹ 4 میں آپ کا استقبال ہے۔ اس ویڈیو میں ہم مثالیں اور مشق نمبر 10.3 کے سوالات حل کرنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سلیم ایک شیڈ میں فیکٹری چلاتا ہے جو مکعب نما پر نصف استوانہ ٹھہرانے کے مانند ہے۔ شیڈ کے قاعدے کا ابعاد 7 میٹر اور 15 میٹر ہے اور ان کی بلندی مکعب نما حصے کی بلندی 8 میٹر ہے۔ اس شیڈ میں موجود ہوا کی گنجائش یا حجم معلوم کیجیے۔ مزید شیڈ میں موجود مشنری 300 مکعب میٹر جگہ گھیرتی ہے اور 20 مزدور اوسطاً 0.08 مکعب میٹر جگہ گھیرتے ہیں، تب اس شیڈ میں موجود ہوا کا حجم معلوم کیجیے۔ اسکرین پر آپ کو شکل دکھائی گئی ہے جس میں ایک مکعب نما ہے اور ایک نصف استوانہ ہے۔ نصف استوانے میں خطر 7 میٹر ہے، جس کا نصف کرنے پر نصف خطر 3.5 میٹر حاصل ہوگا اور اس کی بلندی 15 میٹر ہے۔ اسی طرح سے مکعب نما میں طول 15 میٹر ہے، عرض 7 میٹر ہے اور بلندی 8 میٹر ہے۔ مطلوبہ حجم معلوم کرنے کے لیے ہمیں مکعب نما کا حجم جمع استوانے کا حجم نصف یعنی نصف استوانے کا حجم، یہ دونوں کو جمع کرنے پر مطلوبہ حجم حاصل ہوگا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں مکعب نما کا حجم کا جو ضابطہ ہے LBH ہے اور استوانے کے حجم کا جو ضابطہ ہے وہ πr² ہے۔ یہ دونوں کو ضابطے میں درج کرنے پر LBH + 1/2 πr² حاصل ہوگا۔ مکعب نما کے ابعاد جیسا کہ ہم جانتے ہیں، لینتھ L 15 ہے، B 7 ہے اور H 8 ہے، اور استوانے کے حجم میں پائی کی قدر 22/7 ہے، R کی قدر 3.5 ہے اور H کی قدر 15 ہے۔ ان کو درج کرنے پر 15 ضرب 7 ضرب 8 جمع 1/2 × 22/7 × 3.5 × 3.5 × 15 حاصل ہوگا۔ 15 ضرب 7 ضرب 8 کو ضرب دینے پر 840 حاصل ہوگا اور 1/2 کے 2 سے 22/7 کے 22 کو جب ہم تقسیم کرتے ہیں تو 11 حاصل ہوتا ہے، اور 7 سے 3.5 کو جب ہم تقسیم کرتے ہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں 7 × 5 = 35، لہٰذا یہ 0.5 حاصل ہوگا، جس کے بعد یہ قدر 11 ضرب 0.5 ضرب 3.5 ضرب 15 حاصل ہوگی۔ 11 ضرب 0.5 ضرب 3.5 اور 15 کو ضرب دینے پر 288.75 حاصل ہوگا۔ 840 میں 288.75 کو جمع کرنے پر 1128.75 مکعب میٹر حاصل ہوگا۔ سوال میں دیا گیا ہے کہ مشنری کی گھیری ہوئی جگہ 300 مکعب میٹر ہے۔ مزدوروں کی گھیری ہوئی جگہ معلوم کرنے کے لیے ہم مزدوروں کی تعداد کو اوسط جگہ سے ضرب دیں گے۔ مزدوروں کی تعداد جیسا کہ سوال میں دیا گیا ہے 20 ہے اور اوسط جگہ 0.08 ہے، یہ دونوں کو ضرب دینے پر 1.6 مکعب میٹر حاصل ہوگا۔ اب جملہ گھیری ہوئی جگہ جس میں مشنری کی گھیری ہوئی جگہ 300 ہے اور مزدوروں کی گھیری ہوئی جگہ 1.6 ہے، یہ دونوں کو جمع کرنے پر 301.6 مکعب میٹر حاصل ہوگا۔ اب ہوا کا حجم جبکہ شیڈ میں مشنری اور مزدور موجود ہوں، یعنی مطلوبہ جو حجم ہے کل حجم ہے اس میں سے ہم مشنری اور مزدوروں کا جو حجم ہے اس کو تفریق کرتے ہیں تو مطلوبہ حجم ہمیں یعنی ہوا کا حجم جبکہ شیڈ میں مشنری اور مزدور موجود ہوں حاصل ہوگا، یعنی 1128.75 میں سے 301.6 کو تفریق کرنے پر 875.15 مکعب میٹر حاصل ہوگا جو ہوا کا حجم ہے جبکہ شیڈ میں مشنری اور مزدور موجود ہوں۔ مثال 10، ایک ٹھوس کھلونا جو قائم مدوری استوانہ نما ہے، اس کے 2 کناروں پر ترتیب وار نصف کرہ اور مخروط جڑے ہوئے ہیں، یعنی ایک کنارے پر نصف کرہ ہے اور دوسرے کنارے پر مخروط جڑا ہوا ہے۔ ان کا مشترک قطر 4.2 سمر ہے، جبکہ استوانہ اور مخروط نما حصوں کی بلندی 12 سمر اور 7 سمر ہے۔
तब ठोस खिलौने का हजम मालूम कीजिए। स्क्रीन पर शक्ल बताई गई है, शक्ल का बगौर मुतालिया कीजिए। शक्ल 3 हिस्से जो है इसके अंदर बताए गए हैं। एक ऊपर का मखरूत है, दरमियाना इस्तेवाना है और नीचे का निस्कुरा है। मखरूत का निस्कुतर 2.1 समर है, मखरूत की बुलंदी 7 समर है। इस्तेवाने का निस्कुतर 2.1 समर है, इस्तेवाने की बुलंदी 12 समर है, जबकि निस्कुरे का निस्कुतर 2.1 समर है। मखरूत के हजम का ज़ाबिता B1 = 1/3 πr² H1 है। इस्तेवाने का हजम B2 = πr² H2 है। निस्कुरे का हजम B3 = 2/3 πr³ है। यहाँ पे ख़ास बात यह है कि निस्कुतर सेम लिया गया है, क्योंकि मखरूत का, इस्तेवाने का और निस्कुरे का निस्कुतर जो है 2.1 समर है, जबकि मखरूत की जो बुलंदी है वो 7 समर है, इस्तेवाने की जो बुलंदी है वो 12 समर है। अलग अलग रहने की वजह से इसे H1 और H2 सपोज किया गया है। ठोस खिलौने का हजम दरअसल मखरूत का हजम जमा इस्तेवाने का हजम जमा निस्कुरे का हजम है, यानी तीनों के अलहदा अलहदा हजमों को जब हम मिलाते हैं तो ठोस खिलौने का हजम हासिल होगा, जिसके लिए मखरूत का हजम B1 है जमा इस्तेवाने का हजम B2 है और निस्कुरे का हजम B3 है। इससे पहले B1 और B2 B3 की क़दरें जब हम ज़ाब्ते में दर्ज करते हैं तो 1/3 πr² H1 प्लस πr² H2 प्लस 2/3 πr³ हासिल होगा। 3 अरकान में इसमें πr² मुश्तरिक है, जिसको हम ब्रैकेट के बाहर ले लेते हैं, लिहाजा 1/3 πr² H1 में πr² जब बाहर चले आता है तो ब्रैकेट के अंदर 1/3 H1 बाकी रहेगा। दूसरे रुकन में πr² H2 में πr² जब हम बाहर ले लेते हैं तो ब्रैकेट के अंदर H2 बाकी रहेगा। और तीसरे रुकन में 2/3 πr³ में जब हम πr² बाहर लेते हैं तो 2/3 r³ में से r² बाहर चलेगा, लिहाजा एक r इसके अंदर बाकी रहेगा। लिहाजा πr² ब्रैकेट 1/3 H1 प्लस H2 प्लस 2/3 r हासिल होगा। जैसा कि हम जानते हैं पाई की क़दर 22/7 है, आर की क़दर 2.1 जिसे हम 21/10 लिखते हैं, और H1 की क़दर H1 की क़दर 7 है, H2 की क़दर 12 है 12 है और R की क़दर 21/10 है, जिसको दर्ज करने पर इस तरह से हासिल होगा। ये 22/7 ज़रब 21/10 ज़रब 21/10 ब्रैकेट 1/3 ज़रब 7 जमा 12 जमा 2/3 ज़रब 21/10। जब हम 22/7 के नीचे जो 7 है उससे हम जो है जब 21 को तकसीम करते हैं तो 3 हासिल होगा, लिहाजा 22 ज़रब 3 ज़रब 21/10 ज़रब 10 ये हासिल होगा। और ब्रैकेट में 7/3 जमा 12/1 जमा 7/5 है। 3 और 5 का एलसीएम लेने पर 15 हासिल होगा, लिहाजा हम 7 को 5 से ज़रब देंगे 35 हासिल होगा, 12 को 15 से यानी 3 ज़रब 5 से ज़रब देंगे 180 हासिल होगा और 7 को 3 से ज़रब देने पर 21 हासिल होगा। यानी अभी मजमूई तौर पर 22 ज़रब 3 ज़रब 21/100 ज़रब 35 जमा 180 जमा 21/15 हासिल होगा। जैसे यहाँ पे 15 में 3 इसका जुज़र भी है 15 का, और 3 ज़रब 21 में 3 एक जुज़र भी है। 3 से 15 को तकसीम करने पर यानी 3 एकन 3 3 पंजे 15, लिहाजा यहाँ पे 15 के पास जो है 3 आ जाएगा और 3 ज़रब 21 के पास 21 बचेगा। 35 जमा 180 जमा 21 को जमा करने पर 236 हासिल होगा, लिहाजा ऊपर के जो वैल्यूज़ है 22 ज़रब 21 ज़रब 236 और नीचे के 100 ज़रब 5, ऊपर के और नीचे के अलहदा अलहदा ज़रब देने पर 1,09,032/500 हासिल होगा। 1,09,032 को 500 से जब हम तकसीम करते हैं तो 218.06
6-4 मुकाब समर हासिल होगा, जो दरअसल ठोस खिलौने का हजम है। इसी सवाल को एक दूसरे तरीके से हम हल करते हैं, जिसमें जो है मुकाब, इस्तेवाना और निस्कुरे को अलहदा अलहदा लिया गया है यहाँ पे। तो सबसे पहले हम देखेंगे ऊपर का मखरूत, जिसका निस्कुतर 2.1 समर है और मखरूत की बुलंदी 7 समर है। मखरूत का हजम का जो ज़ाबिता है V1 = 1/3 पाई r²h। इसके अंदर पाई की कदर 22/7 और r की कदर 2.1 और h की कदर 7 दर्ज करने पर ये इस तरह से हासिल होगा 1/3 × 22/7 × 2.1 × 2.1 × 7। 3 से 2.1 को तकसीम करने पर 0.7 हासिल होगा और 7 से 7 को जो है तकसीम करने पर 1 हासिल होगा। लिहाजा जो बच जाता है यहाँ पे 22 ज़रब 0.7 ज़रब 2.1, ये तीनों को ज़रब देने पर 32.34 मुकाब समर हासिल होगा। दरमियानी जो हिस्सा है वो इस्तेवाना है। इस्तेवाने का जो ज़ाबिता है पाई r²h और पाई की कदर जैसा कि आप जानते हैं 22/7 है, r की कदर 2.1 है और h की कदर 12 है। इनको रखने पर ये इस तरह से हासिल होगा 22/7 ज़रब 2.1 ज़रब 2.1 ज़रब 12। 7 से 2.1 को तकसीम करने पर 0.3 हासिल होगा। लिहाजा जो इसका जो हासिल है महासिल है वो 22 ज़रब 0.3 ज़रब 2.1 ज़रब 12 है। इनको ज़रब देने पर 166.32 मुकाब समर हासिल होगा। इसी शक्ल का जो तीसरा हिस्सा है वो हेमिस्फीयर यानी निस्फ कुर्रा है। निस्फ कुर्रे का जो निस्कुतर है वो 2.1 है और निस्फ कुर्रे का जो हजम है V3 = 2/3 पाई r³ है, जिसमें पाई की कदर 22/7 है और r की कदर 2.1 है। इनको दिए गए ज़ाब्ते में दर्ज करने पर 2/3 ज़रब 22/7 ज़रब 2.1 ज़रब 2.1 ज़रब 2.1 हासिल होगा। 3 से और 7 से तकसीम करने पर ऊपर के अरकान को 2 ज़रब 22 ज़रब 0.1 यानी 3 ज़रब 7 21 है, 21 51 21 0.1 हासिल होगा। यहाँ पे बकाया 2.1 2.1 एज इट इज़ रहेंगे। यहाँ पे ये तमाम को ज़रब देने पर 19.404 है, मुकाब समर हासिल होगा। आइए सवाल के जवाब के आखिरी हिस्से में देखते हैं हम। ठोस खिलौने का जो हजम है दरअसल ये तीनों का मजमुआ है, यानी मखरूत का, इस्तेवाने का, निस्कुरे के हजम का मजमुआ है। मखरूत का हजम 32.34 है, इस्तेवाने का हजम 166.32 है, निस्कुरे का हजम 19.404 है। ये तमाम को जमा करने पर 218.064 मुकाब समर हासिल होगा, जो दरअसल ठोस खिलौने का हजम है। मिसाल 11, एक इस्तेवाना नुमा बर्तन को आइसक्रीम से पुर किया गया है, जिसका खुतर 12 समर और बुलंदी 15 समर है। इस आइसक्रीम को ऊपरी निस्कुर्रवी नुमा मखरूत में मसावी तौर पर पुर करके 10 बच्चों में तकसीम किया गया है। अगर मखरूत नुमा हिस्से की बुलंदी इसके कायदे के खुतर का दुगना हो तब आइसक्रीम मखरूत का खुतर मालूम कीजिए। फ़र्ज़ करो कि मखरूत नुमा आइसक्रीम के कायदे का निस्फ खुतर 1 समर है, तब इसका खुतर निस्फ खुतर का दुगना होगा, यानी 2x समर होगा। सवाल में दिया गया है कि मखरूत नुमा आइसक्रीम की बुलंदी खुतर का दुगना है, यानी खुतर 2x है, इसका दुगना 4x समर होगा। मखरूती आइसक्रीम का हजम, मखरूत का हजम जमा निस्फ कुर्रे का हजम है। जैसा कि शक्ल में आप देख सकते हैं, मखरूती आइसक्रीम का जो हजम है वो मखरूत का हजम है और साथ ही साथ जो है यानी इसमें निस्फ कुर्रे का हजम भी शामिल है, यानी दोनों को मिलाने से मखरूती आइसक्रीम का हजम हासिल होगा। मखरूत के हजम का जो ज़ाबिता है 1/3 पाई r² है और निस्फ कुर्रे के हजम का जो ज़ाबिता है वो 2/3 पाई r³ है। मखरूत के हजम में r हम जो है x समर लेंगे और h को 4x लेंगे। निस्फ कुर्रे में r की वैल्यू
x दर्ज करेंगे, लिहाजा ये 1/3 पाई एक्स स्क्वायर इंटू 4x प्लस 2/3 पाई एक्स क्यूब हासिल होगा। मुख्तसर करने पर 1/3 इंटू 4/3 होगा, पाई एज इट इज़ है, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्यूब हो जाएगा, प्लस 2/3 पाई एक्स क्यूब है। पाई एक्स क्यूब सेम है, लिहाजा 4/3 और 2/3 दोनों को जमा करते हैं हम तो 6/3 हासिल होगा। 3 से यानी 3 एकन 3, 3 दूनी 6, लिहाजा 2 पाई एक्स क्यूब मुकाब सेंटीमीटर यानी मुकाब समर जो है हासिल होगा। इस्तेवाने नुमा बर्तन का खुतर 12 समर है और इसकी बुलंदी 15 समर है। इस्तेवाने नुमा बर्तन का जब हम हजम मालूम करते हैं तो इसके लिए ज़ाब्ता है पाई आर स्क्वायर एच। आर की खदर 6 है, क्योंकि खुतर 12 समर है, लिहाजा इसका निस्फ खुतर 6 होगा, यानी पाई इंटू 6 स्क्वायर इंटू एच 15 है, क्योंकि इस्तेवाने की बुलंदी 15 है। 6 स्क्वायर 36 इंटू 15 को जब ज़रब देते हैं हम तो 540 पाई मुकाब समर हासिल होगा। बच्चों की तादाद जिनमें आइसक्रीम तकसीम की गई 10 है, लिहाजा बच्चों की जो तादाद है जिनमें आइसक्रीम तकसीम की गई उनकी तादाद 10 है, लिहाजा इस्तेवाने नुमा बर्तन का हजम बटे एक आइसक्रीम कोन यानी मखरूत का हजम दोनों में निस्बत जो है 10 के बराबर होगी। इस्तेवाने नुमा बर्तन का हजम हम इससे पहले मालूम कर चुके हैं, जो 540 पाई है, और एक आइसक्रीम का जो कोन है उसका हजम 2 पाई एक्स क्यूब है, दोनों की निस्बत जो है 10 के बराबर होगी। जब ज़रबे चली पाई हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो 2 पाई एक्स क्यूब इंटू 10 इज इक्वल टू 540 पाई है। एक्स क्यूब इज इक्वल टू 540 पाई बाई 2 पाई इंटू 10 है। पाई पाई जो है कैंसिल हो जाता, 10 के सिफर को 540 के सिफर को कैंसिल करें तो 54 आता, नीचे 2 है, 2 से जब हम 54 को तकसीम करते हैं तो 27 हासिल होगा, यानी एक्स क्यूब मसावी है 27 तो एक्स मसावी है 3 समर। जैसा कि हम जानते हैं खुतर 2x है, एक्स की कदर 3 रखने पर 2 ज़रब 3 6 समर हासिल होगा आइसक्रीम मखरूत का जो खुतर है। मिसाल 12, एक ठोस जिस्म जो क़ायम मदवरी मखरूती शक्ल का है जिसको एक निस्कुरे पर ठहराया गया है, इस ठोस जिस्म को पानी से भरे एक क़ायम मदवरी इस्तेवाने नुमा बर्तन में इस तरह रखा गया है कि बर्तन के निचले हिस्से से मस हो जाए। तब इस्तेवाने नुमा बर्तन में बचे हुए पानी का हजम मालूम कीजिए, जबकि इस्तेवाना नुमा बर्तन का निस्फ खुतर 3 समर, बुलंदी 6 समर और निस्फ कुर्रे का निस्फ खुतर 2 समर दिया गया है, जबकि मखरूत की बुलंदी 4 समर है। स्क्रीन पर शक्ल बताई गई है, इसका बगौर मुतालिया कीजिए। इसके अंदर इस्तेवाना है, निस्फ कुर्रा है और एक मखरूत है। आइए सबसे पहले हम निस्फ कुर्रे का हजम मालूम करते हैं, जिसका ज़ाबिता है 2/3 पाई आर क्यूब। जैसा कि सवाल में दिया गया है, निस्फ कुर्रे का निस्फ खुतर 2 समर है, लिहाजा आर इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर, जिसको हम दिए गए ज़ाब्ते में दर्ज करने पर 2/3 पाई इंटू आर की जगह 2 रखने पर 2 क्यूब हासिल होगा, यानी 2 की तीसरी 2 ज़रब 2 ज़रब 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और पहले से यहाँ पे एक 2 है, ज़रब देने पर 16 और बटे के नीचे 3 है, 16/3 पाई मुकाब समर हासिल होगा। इस्तेवाने का हजम जिसमें इसका निस्फ खुतर 3 समर दिया गया है और बुलंदी 6 समर दी गई है, जिसको पाई आर स्क्वायर एच में दर्ज करने पर पाई इंटू आर की कदर 3 रखने पर 3 स्क्वायर इंटू एच की वैल्यू 6 रखने पर 6, यानी 3 स्क्वायर 3 3 9, 9 इंटू 6 54 पाई मुकाब समर हासिल होगा। मखरूत का हजम का ज़ाबिता 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है, जिसमें आर की कदर 2 समर और एच की कदर 4 समर दी गई है, जिसको ज़ाबिते में दर्ज करने पर 1/3 पाई इंटू 2 टू द पावर ऑफ 3
2 इंटू 4 यानी 2 दूनी 4, 4 चौक 16, 16/3 पाई मुकाब समर हासिल होगा। ठोस जिस्म का जो हजम है, दरअसल इसके अंदर जो है एक मखरूत है और एक निस्कुर्रा है, यानी मखरूत के हजम को और निस्कुर्रे के हजम को जमा करने पर ठोस जिस्म का हजम हासिल होगा। मखरूत का हजम 16/3 पाई है और निस्कुर्रे का हजम 16/3 पाई है। 16, 16 32/3 पाई मुकाब समर हासिल होगा। अब इस्तेवाना नुमा बर्तन में बचे हुए पानी का हजम, इस्तेवाने का हजम माइनस ठोस जिस्म का हजम, यानी इस्तेवाने नुमा बर्तन में बचे हुए पानी के हजम को मालूम करने के लिए हम कुल यानी इस्तेवाने के कुल हजम में से ठोस जिस्म के हजम को माइनस करेंगे, तफरीक करेंगे। इस्तेवाने का हजम हम इससे पहले मालूम कर चुके हैं 54 पाई है। ठोस जिस्म का हजम जो है 32/3 पाई है। 3 इंटू 54 162 माइनस 32/3 पाई कामन ले लेंगे हम इसमें से, यानी 162 में से 32 निकालते हैं हम तो 130/3 हासिल होगा। और पाई की कदर 22/7 इसके अंदर रखते हैं तो 22/7 ज़रब 130/3 हासिल होगा। लिहाजा 22 ज़रब 130 जब हम ज़रब देते हैं तो 2861 हासिल होता है। 7 और 3 को ज़रब देने पर 21 हासिल होगा। जब हम 2861 को 21 से तकसीम करते हैं तो 136.19 मुकाब समर हासिल होगा, जो इस्तेवाने नुमा बर्तन में बचे हुए पानी का हजम है। मिसाल 13, एक इस्तेवाना नुमा पेंसिल के सरे को तराश कर मखरूती शक्ल दी गई है, इस तरह के इसके तूल में कोई कमी ना हो। अगर पेंसिल का खुतर 1 समर और तराशे हुए मखरूती हिस्से का तूल 2 समर हो तो तराशे हुए हिस्से का हजम मालूम कीजिए। जवाब को आशारिया के 2 मुकामात तक मालूम कीजिए। पेंसिल की शक्ल को स्क्रीन पर बताया गया है, जिसमें इसका खुतर 1 समर दिया गया है, यानी इसका निस्फ खुतर 0.5 समर होगा। तराशे हुए मखरूती हिस्से का जो तूल है वो 2 समर दिया गया है। सबसे पहले हम इस्तेवाने का हजम मालूम करते हैं, जिसके लिए ज़ाब्ता है πr²h, जिसमें पाई 22/7 है, r 0.5 समर है और बुलंदी 2 समर है। और मखरूत के हजम का ज़ाबिता है 1/3 πr²h, जिसमें निस्कुतर 0.5 समर है और बुलंदी 2 समर है। तराशे हुए हिस्से का हजम दरअसल जो है इस्तेवाने का हजम माइनस मखरूत का हजम है। इस्तेवाने के हजम का जो ज़ाबिता है πr²h और मखरूत के हजम का ज़ाबिता है 1/3 πr²h। जब हम इसको तफरीक करते हैं तो हमें 1 - 1/3 माने 3 - 1/3 दरअसल 2/3 πr² हासिल होगा। सवाल में दिया गया है कि पाई की कदर 355/113 है, जिसको हम दर्ज करने पर r की कदर 0.5 है, लिहाजा r² की जो कदर है वो 0.25 होगी और h 2 है, जिसको हम ज़ाबिते में दर्ज करने पर 2/3 इंटू 355/113 इंटू 0.25 इंटू 2 हासिल होगा। शुमार कुनिंदे के और नस्बनुमा के वैल्यूज़ को जब हम अलहदा ज़रब देते हैं तब 4 ज़रब 355 ज़रब 0.25/339 हासिल होगा। ऊपर की जब खतरों को हम ज़रब देते हैं तो 355 हासिल होगा, यानी 355 को 339 से जब हम तकसीम करते हैं 1.05 मुकाब समर हासिल होगा, जो तराशे हुए हिस्से के हजम की कदर है। सवाल नंबर 1, एक इस्तेवाना नुमा लोहे का बर्तन जिसकी बुलंदी 2.8 मीटर है और खुतर 20 मीटर है, इस पर 42 समर बुलंदी वाला मखरूत नस्ब किया गया है। अगर एक मुकाब समर लोहे का वजन 7.5 ग्राम हो तो इस लोहे के सुतून का वजन क्या होगा। स्क्रीन पर शक्ल को बताया गया है, जिसमें जो है ये शक्ल 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। एक इस्तेवाना है और इस्तेवाने के ऊपर एक मखरूत है। इस्तेवाने और मखरूत का निस्खुतर
معلوم کرنے کے لیے ہم اس کا قطر 20 سمر دیا گیا ہے، لہٰذا اس کا جو نصف قطر ہوگا وہ 10 سمر ہوگا، جبکہ استوانے کی بلندی 2.8 میٹر ہے اور مخروط کی بلندی 42 سینٹی میٹر ہے۔ آئیے سب سے پہلے ہم مخروط کا حجم معلوم کرتے ہیں، جس کے لیے دیا گیا ہے کہ نصف قطر 10 سمر ہے اور مخروط کی بلندی 42 سمر ہے، جس کو جو ہے ضابطہ 1/3 پائی آر اسکوائر ایچ میں رکھنے پر 1/3 رہے گا۔ پائی کی قیمت 22/7 ہے، آر کی قیمت 10 ہے، لہٰذا 10 اسکوائر لکھیں گے ہم، ضرب ایچ 42 ہے۔ نیچے ڈینامنیٹر میں 3 اور 7 ہے، اوپر نیومینیٹر میں جو ہے 42 ہے۔ 3 اور 7 سے جو ہے یعنی 3 ضرب 7 21 سے جب ہم 42 کو تقسیم کرتے ہیں تو 2 حاصل ہوگا، لہٰذا جو سوال میں حاصل ہوگا وہ 22 ضرب 100 ضرب 2 ہوگا، جس کو ہم ضرب دینے پر 4400 مکعب ثمر حاصل ہوگا۔ اسی طرح سے جب ہم استوانے کا حجم معلوم کرتے ہیں تو استوانے کے حجم کا جو ضابطہ ہے پائی آر اسکوائر ایچ ہے، جس میں پائی کی قدر 22/7 ہے، آر کی قدر 10 ہے، یعنی 10 اسکوائر لکھیں گے ہم کیونکہ یہاں پہ آر اسکوائر دیا گیا ہے، اور ایچ 280 سمر ہے۔ ان کو ضابطے میں رکھنے پر 22/7 ضرب 10 کی دوسری ضرب 280 حاصل ہوگا۔ 7 سے جب ہم 280 کو ضرب دیتے ہیں تو 40 حاصل ہوگا، لہٰذا 22 ضرب 100 ضرب 40 حاصل ہوگا ہمیں۔ یہ تمام کو ضرب دینے پر 88,000 مکعب ثمر حاصل ہوگا۔ جملہ حجم معلوم کرنے کے لیے ہمیں استوانے کا حجم چاہیے اور مخروط کا حجم چاہیے۔ جب ہم دو حجموں کو جب ہم جمع کرتے ہیں تو جملہ حجم حاصل ہوتا ہے۔ استوانے کا حجم دیا گیا ہے کہ 88,000 اور مخروط کا حجم دیا گیا ہے کہ 4,400، دونوں کو جب ہم جمع کرتے ہیں 92,400 مکعب ثمر حاصل ہوگا۔ لوہے کے ستون کا وزن معلوم کرنے کے لیے جیسا کہ سوال میں دیا گیا ہے، ایک مکعب ثمر کا وزن 7.5 گرام ہے، تو 92,400 مکعب ثمر کا وزن کتنا ہوگا؟ 92,400 کو جب ہم 7.5 سے ضرب دیتے ہیں تو 6,93,000 گرام حاصل ہوگا، اور جیسا کہ ہم جانتے ہیں گرام کو کلو گرام میں کنورٹ کرنے کے لیے اسے 1000 سے تقسیم کیا جاتا ہے، تو 6,93,000 گرامز کو جب ہم 1000 سے تقسیم کرتے ہیں تو 693 کلو گرام حاصل ہوگا، جو ہے دراصل لوہے کے ستون کا وزن ہے۔ سوال نمبر 2، ایک کھلونا جو ایک نصف کرے کے اوپری سطح پر مخروط نما حصے کو اس طرح نصب کیا گیا ہے کہ اس کا قاعدہ نصف کرے کے ہموار سطح سے جڑا ہوا ہے۔ اگر مخروط کے قاعدے کا نصف قطر 7 سمر اور اس کا حجم نصف کرے کے حجم کا 3/2 گنا ہے، تب مخروط کی بلندی اور کھلونے کا سطحی رقبہ اعشاریہ کے 2 مقام تک معلوم کیجیے، جبکہ پائی کی قدر 3/1/7 دی گئی ہے۔ اسکرین پر شکل دی گئی ہے جس میں مخروط اور نصف کرہ ہے۔ مخروط کی بلندی معلوم کرنا ہے۔ مخروط کا نصف قطر 7 سمر دیا گیا ہے۔ سوال میں دیا گیا ہے کہ مخروط کا حجم نصف کرے کے حجم کا 3/2 گنا ہے، لہذا مخروط کا حجم مساوی ہے 3/2 انٹو نصف کرے کا حجم۔ مخروط کے حجم کا ضابطہ 1/3 پائی آر اسکوائر ایچ ہے، از اکول ٹو 3/2 انٹو نصف کرے کا حجم 2/3 پائی آر کیوب ہے۔ دونوں جانب 1/3 کٹ کرنے پر اور پائی آر اسکوائر کٹ کرنے پر ایچ از اکول ٹو 3R بچے گا، یعنی آر کی قیمت 7 دی گئی ہے، جس کو درج کرنے پر 3 ضرب 7 21 سمر حاصل ہوگا، جو دراصل مخروط کی بلندی ہے۔ کھلونے کا سطحی رقبہ مخروط کا سطحی رقبہ جمع نصف کرے کا سطحی رقبہ ضابطہ ہے۔ مخروط کا سطحی رقبہ معلوم کرنے کے لیے مخروط کا نصف قطر 7 سمر دیا گیا ہے، مخروط کی بلندی 21 سمر دی گئی ہے، جبکہ مخروط کی مائل بلندی L معلوم کرنا ہے، جس کے لیے ضابطہ دیا گیا ہے کہ L از اکول ٹو √R اسکوائر پلس H اسکوائر۔ R اور H کی قدریں ضابطے میں درج کرنے پر √7 اسکوائر پلس 21 اسکوائر، جس کو مختصر کرنے پر 7 کی دوسری 49 اور 21 کی دوسری 441، دونوں کو جمع کرنے پر 490 حاصل ہوگا، اور 490 کا جذر المربع 22.135 سمر ہوگا۔ مخروط کا سطحی رقبہ جس کا ضابطہ ہے پائی آر ایل، سوال میں دیا گیا ہے پائی کی قیمت 3/1/7، جس کو حل کرنے پر 22/7 حاصل ہوگا،
آر کی قیمت 7 ہے اور ایل کی قیمت 22.135 ہے۔ 7 کینسل ہو جاتا، 22 ضرب 22.135 کو ضرب دینے پر 486.990 مکعب ثمر حاصل ہوگا۔ نصف کرے کا سطحی رقبہ معلوم کرنے کے لیے ضابطہ دیا گیا ہے 2πr²، جبکہ اس کا نصف قطر 7 ثمر ہے۔ دیے گئے ضابطے میں درج کرنے پر 2 × 22/7 × 7 × 7، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آر کی قیمت 7 ہے، 7 کینسل ہو جاتا ہے، 2 ضرب 22 ضرب 7 کو ضرب دینے پر 308 مکعب ثمر حاصل ہوگا۔ کھلونے کا سطحی رقبہ دراصل مخروط کا سطحی رقبہ جمع نصف کرے کا سطحی رقبہ ہے۔ دو خدروں کو ضابطے میں رکھنے پر 486.990 + 308 دونوں کو جمع کرنے پر 794.990 سینٹی میٹر مکعب ثمر حاصل ہوگا، جو دراصل کھلونے کا سطحی رقبہ ہے۔ سوال نمبر 3، اعظم ترین قائم مدوری مخروط کا حجم معلوم کیجیے جس کو 7 ثمر ضلع والے مکعب سے علیحدہ کیا گیا ہے۔ جیسا کہ سوال میں دیا گیا ہے، ایک مکعب سے اعظم ترین قائم مدوری مخروط کو نکالا گیا ہے جس کا حجم معلوم کرنا ہے۔ شکل میں دیکھیے آپ کہ مخروط کا جو قاعدہ ہے، قاعدے کا خطر ضلع کے طول کے برابر ہے، یعنی جب مکعب کا ضلع 7 ثمر ہے تو لہٰذا جو ہے مخروط کا خطر 7 ثمر ہوگا، جبکہ اس کا نصف خطر 7/2 ہوگا، اور مخروط کی بلندی مکعب کے ضلع کے بلندی کے برابر ہوگی، یعنی طول کے برابر ہوگی، لہٰذا بلندی 7 ثمر ہوگی۔ مخروط کا حجم معلوم کرنے کا ضابطہ 1/3 πr² ہے، جس میں πr اور h کی قیمتیں درج کرنے پر 1/3 × 22/7 × 7/2 × 7/2 × 7 کینسل ہوا تھا، یہاں پہ 22 ضرب 7 ضرب 7/3 ضرب 2 ضرب 2 بچ جاتا۔ 22 ضرب 7 ضرب 7 کو ضرب دینے سے 1078 حاصل ہوگا، اور 3 ضرب 2 ضرب 2 کو ضرب دینے سے 12 حاصل ہوگا۔ 1078 کو 12 سے تقسیم کرنے پر 89.83 مکعب ثمر حاصل ہوگا، جو مخروط کا حجم ہے۔ سوال نمبر 4، ایک استوانہ نما برتن جس کا نصف قطر 5 ثمر اور بلندی 9.8 ثمر ہے پانی سے بھر دیا گیا ہے۔ مخروطی شکل کا ٹھوس جسم جو کہ نصف کرے پر نصب ہے، جس کو اس برتن میں ڈالا گیا، نصف کرے کا نصف قطر 3.5 ثمر ہے اور مخروطی حصے کی بلندی 5 ثمر ہے، تب استوانہ برتن میں بچے ہوئے پانی کا حجم معلوم کیجیے۔ شکل میں استوانے کو بتایا گیا ہے۔ استوانے کا حجم معلوم کرنے کا ضابطہ πr² ہے، جس میں π کی قدر 22/7 ہے، r کی قدر 5 ثمر ہے اور h کی قدر 9.8 ثمر ہے۔ ضابطے میں درج کرنے پر 22/7 ضرب 5 ضرب 5 ضرب 9.8 حاصل ہوگا۔ 7 سے 9.8 کو تقسیم کرنے پر 1.4 حاصل ہوگا۔ 22 ضرب 25 5 × 25 ضرب 1.4 کو ضرب دینے پر 770 مکعب ثمر حاصل ہوگا، جو استوانے کا حجم ہے۔ مخروط کا حجم کا ضابطہ 1/3 πr² ہے، جس میں π کی قدر 22/7 ہے، r کی قدر 3.5 ثمر ہے اور h کی قدر 5 ثمر ہے۔ ان قدروں کو ہم ضابطے میں درج کرتے ہیں تو 1/3 × 22/7 × 3.5 × 3.5 × 5 حاصل ہوگا۔ 7 سے 3.5 کو تقسیم کرنے پر، جیسا کہ آپ جانتے ہیں 7 × 5 = 35، 3.5 کو 7 سے تقسیم کرنے پر 0.5 حاصل ہوگا۔ 1/3 × 22/7 × 0.5 × 3.5 × 5۔ اوپر کے نیومینیٹر کے ویلیوز کو جب ہم ضرب دیتے ہیں تو 192.5 حاصل ہوگا، اور نیچے ڈینامینیٹر میں 3 ہے، لہٰذا 192.5/3 مکعب ثمر جو مخروط کا حجم حاصل ہوگا۔ یہاں پہ نصف کرے کا حجم معلوم کرنے کا ضابطہ 2/3 πr² ہے۔ پی کی قدر جیسا کہ آپ جانتے ہیں 22/7 ہے اور r کی قدر 3.5 ہے، جس کو ضابطے میں رکھنے پر 2/3 × 22/7 × 3.5 × 3.5 × 3.5۔ 7 سے
3.5 को तकसीम करने पर 0.5 हासिल होगा। 2 ज़रब 22 ज़रब 0.5 ज़रब 3.5 ज़रब 3.5 को ज़रब देने पर 269.5/3 मुकाब सेंटीमीटर हासिल होगा। ठोस का हजम दरअसल निस्कुर्रे का हजम जमा मखरूत का हजम है। निस्कुर्रे का हजम हम मालूम कर चुके हैं 269.5/3 और मखरूत का हजम भी मालूम कर चुके हैं 192.5/3। दोनों को जमा करने पर 462/3 हासिल होगा। 462 को 3 से डिवाइड करने पर तकसीम करने पर 154 मुकाब समर हासिल होगा। इस्तेवाने में बचे हुए पानी का हजम यानी इस्तेवाने का बर्तन का हजम माइनस ठोस जिस्म का हजम। इस्तेवाना बर्तन का हजम 770 है और ठोस जिस्म का जो हजम हम इससे पहले मालूम कर चुके हैं 154 है। 770 में से 154 को निकालने पर 616 मुकाब समर हासिल होगा, जो इस्तेवाने में बचे हुए पानी का हजम है। सवाल नंबर 5, मुत्तसिला शक्ल में एक ठोस इस्तेवाने की बुलंदी 10 समर और खुतर 7 समर है। 2 मसावी मखरूती हिस्सों को शक्ल के मुताबिक निकाल दिया गया है, जिसका निस्फ खुतर 3 समर और बुलंदी 4 समर है। जब इस्तेवाने के बचे हुए हिस्से का हजम मालूम कीजिए। दी गई शक्ल का बगौर मुतालिया कीजिए। एक इस्तेवाना दिया गया है जिसकी जो है बुलंदी 10 समर है और खुतर 7 समर है, जिसमें से 2 इख्तितामी सरों से 2 मसावी मखरूती हिस्सों को निकाल दिया गया है। ये मखरूत का निस्फ खुतर 3 समर और बुलंदी 4 समर है। इस्तेवाने का हजम का ज़ाबिता πr² है, जिसमें खुतर 7 समर दिया गया है, लिहाजा निस्फ खुतर इसका आधा यानी 3.5 समर होगा और बुलंदी 10 समर दी गई है, जिसको दर्ज करने पर पाई की कदर 22/7, आर की कदर 3.5 और हेच की कदर 10 दर्ज करने पर 22/7 ज़रब 3.5 ज़रब 3.5 ज़रब 10 हासिल होगा। 7 से 3.5 को तकसीम करने पर 0.5 हासिल होगा। 22 ज़रब 0.5 ज़रब 3.5 को 10 से ज़रब देते तो 35 हासिल होगा। ये तीनों को ज़रब देने पर 385 मुकाब समर हासिल होगा। मखरूत का हजम जिसका ज़ाबिता है 1/3 πr²h, जिसमें पाई की कदर 22/7 है, आर की कदर 3 है और हेच की कदर 4 है, दर्ज करने पर 1/3 × 22/7 × 3 × 3 × 4 हासिल होगा। 3 कैंसिल हुआ, यहाँ पे 22 ज़रब 3 चौक 12, दोनों को ज़रब देने से 264 हासिल होगा। नीचे 7 है, लिहाजा 264/7 और 264 को 7 से तकसीम करने पर 37.714 मुकाब समर हासिल होगा, जो एक मखरूत का हजम है। हमें 2 मखरूत के हजम के लिए एक मखरूत के हजम को 2 से ज़रब देंगे, जिससे जो है 37.714 × 2 75.428 मुकाब समर हासिल होगा। इस्तेवाने के बचे हुए हिस्से का हजम मालूम करने के लिए इस्तेवाने के हजम में से 2 मखरूत जो दोनों सरों से जो है निकाल दिए गए थे उनका हजम हम निकाल देंगे, जिसकी वजह से हम जो है 385 - 75.428 जिसको मुख्तसर करने पर 309.572 मुकाब समर हासिल होगा, जो इस्तेवाने के बचे हुए हिस्से का हजम है। सवाल नंबर 6, 1.4 समर खुतर के कुर्रवी शक्ल के कंचों यानी गोलियों को 7 समर खुतर इस्तेवाने नुमा बर्तन में डाला गया है, जिसमें पानी की कुछ मकदार मौजूद है। जब कंचों की तादाद मालूम कीजिए, जिसको बर्तन में डालने पर पानी की सतह में 5.6 समर का इजाफा हो जाए। शक्ल पर गौर कीजिए। एक इस्तेवाना नुमा बर्तन में जिसमें पानी की कुछ मकदार पहले से मौजूद है। जब हम कंचों की कुछ तादाद को इसके अंदर डालते हैं तो पानी की सतह में इजाफा होता है, यानी 5.6 सेंटीमीटर का यानी समर का इजाफा होता है। तब हमें कंचों की जो तादाद है उसे मालूम करना है। इस्तेवाने में पानी की सतह में इजाफा यानी हाइट = 5.6 सेंटीमीटर है। इस्तेवाने का निस्फ खुतर सवाल में दिया गया है, खुतर 7 समर दिया गया है, लिहाजा इस्तेवाने का निस्फ खुतर जो है 3.5 समर यानी 7/2 होगा।
इस्तेवाने के हजम का ज़ाबिता पई आर स्क्वायर एच है, जिसमें पई की वैल्यू कदर 22/7 है, आर की कदर 3.5 है और एच की कदर 5.6 सेंटीमीटर है। इन वैल्यूज़ को ज़ाब्ते में दर्ज करने पर हमें 22/7 ज़रब 3.5 ज़रब 3.5 ज़रब 5.6 हासिल होगा। 7 से 3.5 को तकसीम करने पर 0.5 हासिल होगा। 22 ज़रब 0.5 ज़रब 3.5 ज़रब 5.6 को ज़रब देने पर 215.6 मुकाब समर हासिल होगा। कंचा कुर्रे की तरह है, लिहाजा हम एक कंचे का हजम यानी कुर्रे का हजम मालूम करेंगे पहले, जिसके लिए ज़ाब्ता दिया गया है कि 4/3 पाई आर क्यूब, जहाँ पे आर की जो कीमत है वो खुतर 1.4 समर दिया गया है, इसका निस्खुतर 1.4/2 0.7 समर होगा। आर इज इक्वल टू 0.7 समर हम ज़ाब्ते में दर्ज करते हैं तो 4/3 ज़रब 22/7 ज़रब 0.7 ज़रब 0.7 ज़रब 0.7 हासिल होगा। 7 से 0.7 को तकसीम करने पर 0.1 हासिल होगा और 0.7 को 0.7 से ज़रब देने पर 0.49 हासिल होगा। अब ऊपर के जो है 4 ज़रब 22 ज़रब 0.1 ज़रब 0.49 को ज़रब देने पर 4.312 हासिल होगा। नीचे बटे के नीचे 3 है, 3 को जब हम 4.312 को 3 से तकसीम करते हैं तो 1.4373 मुकाब समर हासिल होगा। इस्तेवाने में पानी की सतह में इजाफा यानी हजम 215.6 मुकाब समर हासिल हुआ। एक कंचे का हजम 1.4373 है, 1.4373 है। तो कंचों की जो तादाद है पानी की सतह यानी हजम इस्तेवाने का जो बड़ा हुआ जो हजम है पानी का बटे एक कंचे का हजम यानी 215.6 बटे 1.4373। आशार्य को हटाने के लिए हम नीचे आशार्य के बाद 4 मुकामात है, ऊपर आशार्य के बाद जो है 1 मुकाम है। दोनों को मसावी करने के लिए 6 के बाजू हम 3 सिफर लगाते हैं, जिससे हमें 21,56,000 हासिल होगा। नीचे जो है 14,373 है, जिसकी तकसीम को बाजुक बताया गया है। 14,373 को एक बार जब हम लेते हैं तो बाकी जो बचा यहाँ पे 7187 बचा, 0 उतारते हैं उसके आने 5 टाइम्स जाता है, ये 71865, फिर 05 बचता है, उसके बाजू हम सिफर लगाते हैं तो ये सिफर टाइम्स जाएगा, 50 बचेगा, 50 के बाद फिर ऊपर का 0 उतारते हैं हम तो ये जो है 500 बाकी बचेगा। आशार्य के बाद फिर जो है सिफर लगाते हैं हम, फिर उसके अंदर से सिफर टाइम्स निकालते हैं, लिहाजा जो है 150.00 हासिल हुआ। तो कंचों की जो तादाद है वो 150 होगी। सवाल नंबर 7, लकड़ी का बना हुआ पिन स्टैंड जो कि मुकाबनुमा शक्ल का है, जिसमें 3 मखरूत नुमा खौल हैं। मुकाबनुमा के बाद 15 समर, 10 समर और 3.5 समर है। हर खौल का निस्कुतर 0.5 समर और गहराई 1.4 समर है। तो स्टैंड में मुस्तमिला लकड़ी का हजम मालूम कीजिए। सबसे पहले हम जो है लकड़ी का कुंदा जो मुकाबनुमा है उसका हजम मालूम करेंगे। उसमें से जो है 3 जो मखरूत नुमा खौल है उनका हजम मालूम करके उसमें से हम तफरीक करेंगे, जिससे जो है हमें मुस्तमिला जो है स्टैंड में मुस्तमिला लकड़ी का हजम हासिल होगा। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं। मुकाबनुमा का तूल 15 समर दिया गया है, अर्ज भी 10 समर दिया गया है और बुलंदी h 3.5 समर दिया गया है। मुकाबनुमा का हजम का जो ज़ाबिता है वो LBH है। L की कदर 15 है, B की कदर 10 है और H की कदर 3.5 है। तीनों को जब हम ज़ाब्ते में रखकर ज़रब देते हैं तो 525 मुकाब समर हासिल होगा। मखरूत नुमा का निस्कुतर 0.5 समर है, बुलंदी 1.4 समर है। मखरूत नुमा का जो हजम है खौल का जो हजम का ज़ाबिता है 1/3 पाई आर स्क्वायर h है।
पाई की कीमत 22/7 है, आर की कीमत 0.5 है और हिच की कीमत 1.4 है। इसको ज़ाब्ते में रखने पर 1/3 ज़रब 22/7 ज़रब 0.5 ज़रब 0.5 ज़रब 1.4 हासिल होगा। 7 से हम 1.4 को जब हम तकसीम करते हैं तो 0.2 हासिल होता है, यानी 22 ज़रब 0.25 ज़रब 0.2 को ज़रब देने पर हमें 1.1 हासिल होता है, जबकि बटे के नीचे 3 है, लिहाजा मखरूत नुमा का जो हजम है खौल का वो 1.1/3 मुकाब समर होगा। चूँकि कुंदे में, लकड़ी के कुंदे में मुकाब नुमा में स्टैंड में 3 मखरूत नुमा खौल हैं, लिहाजा 3 ज़रब 1.1/3, 3 को कैंसिल करने पर 1.1 मुकाब समर हासिल होगा। लकड़ी के स्टैंड का हजम मालूम करने के लिए हम मुकाब नुमा के हजम में से 3 मखरूत नुमा का जो हजम है उसको माइनस करेंगे, तो 525 मुकाब नुमा का हजम है। 3 मखरूत नुमा का जो हजम है वो 1.1 है। 525 माइनस 1.1 करने पर हमें 523.9 मुकाब समर हासिल होगा, जो दरअसल लकड़ी के स्टैंड का हजम है।